Good morning, students. If you are able to hear my voice, please send yes. If you are able to see the screen, please send yes in the chat box. Okay, good. So, till yesterday, we have studied homogeneous method, non homogeneous method of solution of differential equation. Then, before that, we have studied variable separation form. Today, we are going to cover method of exact differential equation, solution for that. Then we will do integrating factor related to the same method. Okay, relate to the same method, integrating factor. Then we have integrating factor of some of the equations. There are some types of equation. Okay, then same again, integrating factor is related. There are two types of three types. One is related to exact differentiable equation, another is related to some types of equations, and the third one is related to mdx plus ndy equals to 0. What is m, what is n, I will tell you in the questions. Okay, all are related to each others, all are related to each other. Then we have linear equations. What are the linear equations, how to find the differential equations of that using again integrating factor. So I'm planning to finish till linear equations in these two lectures, or if we get a time, then we will move towards the Bernoulli's differential equations, because that is again an easy part, not a difficult part. Okay, it is again a easy part. Then we have applications of differential equation, and you have studied this application of differential equations in your 11-12 standard, okay, in your science, but still we will do that because it is a part of our syllabus. And then we have very small concepts, very small concepts, means even uh, because the concept is same, one questions are there for that. Okay, so let's see how much we can cover. The last part of this is Clairaut's differential equations, but it is very difficult to finish everything today. So we will try to cover maximum part today with proper understanding. That is important because variety of questions were there in variable separable form and homogeneous. Now we don't find any variety of questions because method is same. You have saw that वेरिएबल सेपरेबल में 4-5 क्वेश्चन अलग अलग मिले थे, फिर होमोजेनियस में 2-3 अलग थे, लेकिन जब नॉन होमोजेनियस में दो ही टाइप थे, एक डिवीजन वाला एंड एक सेपरेट वाला, राइट, मीन्स दिस वन, एक डिवीजन रिलेटेड एंड एक सेपरेट रिलेटेड, बस ये दो ही टाइप थे, बाकी इसमें कोई और टाइप था नहीं. तो ऐसे भी धीरे धीरे टाइप्स क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे. ठीक. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस मेथड ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल इक्वेशन. तो ये बहुत सिंपल है. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन, ऑब्टेन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशंस को आप फॉर्म करते हो, ऑब्टेन, ओके, फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन. उसके सॉल्यूशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं. मतलब अगर आपको एक्स वाई वाले इक्वेशन दिया जाए, उसको डिफरेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिलता है, डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे तो आपको जो मिलता है उसको सॉल्यूशन कहते हो. आप उस एक्स वाई इक्वेशन को क्या कहते हो, सॉल्यूशन कहते हो. ठीक है, ठीक है. फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन ओनली बाय डिफरेंशिएशन. कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन उसके इक्वेशन से, सॉल्यूशन कहो या इक्वेशन कहो, ऑब्टेन फ्रॉम इट सॉल्यूशन ओनली बाय डिफरेंशिएशन, सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव करने से ही मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसका एक एग्जांपल दे दूँ. फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी. एक ही कांस्टेंट है, एक ही बार डिफरेंशिएट करोगे, और यहाँ पे कुछ एलिमिनेट नहीं करना है, किसी को ऐड नहीं करना है, किसी को सब्सटीट्यूट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस यू जस्ट नीड टू, just a second, you just need to do differentiation, you will get the differential equation only by, सिर्फ डिफरेंशिएट करने से मिलता है, किसी को ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस. तो अभी आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या, सिंपल सा टर्म, इक्वेशन को सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, ना ऐड करना है ना सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल इक्वेशन. ठीक. अभी इसका नॉर्मल फॉर्म आपको जो मिलता है वो होता है, ठीक है, इसका जो नॉर्मल फॉर्म होता है वो होता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0. अगर आप इसको डिफरेंशिएट करो तो आपको एक टर्म एम में मिलेगा, फिर डी एक्स प्लस एक टर्म एन में मिलेगा, फिर डी वाई इक्वल्स टू 0, क्योंकि सी का डेरिवेटिव 0 ही होता है. तो ये उसका क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म होता है. इट इज़ वेरी 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 नॉर्मल फॉर्म. ठीक है.
तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका मेथड क्या है, तो बस आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, मतलब आप देखो कि हाउ आई एम सॉल्विंग दैट क्वेश्चन, बस एक बार वो समझ में आ जाए ना कि कैसे डील करना है। मेथड इज़ गोइंग टू रिमेन सेम फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो पहले हमें पहचानना होगा कि ये इस फॉर्मेट में बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, ठीक है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, थोड़ा अच्छा क्वालिटी का एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, क्वेश्चन 1, सॉल्व 6x raised to 5 y cube plus 4x cube y raised to 5 into dx plus 3x raised to 6 y square plus 5x raised to 4 y raised to 4 into dy and the whole equals to 0। तो सबसे पहले मेरा यही क्वेश्चन, क्या है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई ऐसे अड़के हुए एक दूसरे में और डी एक्स एंड डी वाई भी उसको अटैच होने के कारण ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बैठता नहीं, फर्स्ट। सेकंड, क्या है होमोजीनियस है, होमोजीनियस पावर्स 5 और 3 8, 3 और 5 8, 6 और 2 8, 4 और 4 8, होमोजीनियस में बैठ रहा है, लेकिन इसके पावर्स बहुत बड़े हैं, हेवी पावर्स। आप जितने भी होमोजेनियस के क्वेश्चंस देखो उसके पावर 1 2 3 इसमें बैठे हैं या 8 8 में है, होमोजेनियस से नहीं कर पाएंगे। फिर ये नॉन होमोजेनियस पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इसमें ना प्लस वाला टर्म है ना माइनस वाला टर्म है, ठीक। तो लास्ट में आता है अपने पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और इक्वल टू 0 भी दिख रहा है, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 दिख रहा है ना, एम डी एक्स एन डी वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, कंपेयरिंग इट मतलब ये इक्वेशन को विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। मुझे बताओ m का वैल्यू क्या आएगा, m आएगा 6x रेस टू 5 वाई क्यूब प्लस 4x क्यूब वाई रेस टू 5, ये m आ गया, ठीक है। n आएगा बाद में, उसको इधर लिख सकते हैं लेकिन बाद में लिखेंगे। अभी क्या करेंगे, मेथड देखो, m को हम डिफरेंशिएट करेंगे लेकिन पार्शियली मतलब डेल m अपॉन डेल y, dx के साथ है ना तो y से डिफरेंशिएट करेंगे, याद रखना, dx से m dx है तो m को हम dx से डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, डेल वाई से करेंगे, डी वाई से करेंगे, डी वाई लिखते नहीं हम, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डेल वाई लिखेंगे। तो डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x को हम कुछ नहीं कर सकते, x को एज इट इज़ रखेंगे, लेकिन y को डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो y क्यूब का डिफरेंशिएशन आता है 3y स्क्वायर 6 3 ज़ा 18 x रेस टू 5 y स्क्वायर, y क्यूब क्या आता है 3y स्क्वायर 6 3 ज़ा 18 एक्स रेस टू 5 एज इट इज़ वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी एक्स क्यूब एज इट इज़ क्योंकि वाई से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वाई रेस टू 5 का आएगा 5 वाई रेस टू 4, तो 5 4 ज़ा 20, यह आ गया आपका डेल एम अपॉन डेल वाई, ठीक। एंड एन का वैल्यू क्या हो जाएगा कंपेयर करने के बाद, 3x रेस टू 6 वाई स्क्वायर प्लस 5x रेस टू 4 वाई रेस टू 4। अभी अगर m dx के साथ है तो डेल y किया, तो n dy के साथ है तो किससे करेंगे, dx से, तो डेल n अपॉन डेल x क्या हो जाएगा, अभी y एज इट इज़ x 6 होता है 6x रेस टू 5, डिफ्रेंशिएशन होगा 6x रेस टू 5, 6 3 ज़ा 18 x रेस टू 5 प्लस y रेस टू 4 एज इट इज़, x रेस टू 4 होता है 4x क्यूब एंड 4 5 ज़ा 20, ठीक, 20 से हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इतना स्टेप्स आपको एडवांस में लिखना है, हर बारीक बारीक स्टेप नहीं लिख सकते, ठीक। नाउ यहाँ से कुछ ऑब्जर्व हो रहा है आप लोगों को, एनी ऑब्जर्वेशन यहाँ से, देयरफॉर डेल एम अपॉन डेल वाई इज़ नथिंग बट डेल एन अपॉन डेल एक्स, दोनों इक्वल आ गए। देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इज़ एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल इक्वेशन, ये अभी हमने प्रूव कर दिया, ये अभी हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि इट इज़ एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल इक्वेशन। देयरफॉर इट्स सॉल्यूशन इज, अभी इसका सॉल्यूशन कैसे आता है तो ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ m डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x डॉट डी वाई इक्वल्स टू 0, ये इसका फॉर्मूला है।
आपको इसका प्रूफ नहीं है सिलेबस में, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, जो ये यहाँ पे था ना एम डी एक्स एज इट इज़, एंड एन की जगह पे क्या आएगा, टर्म्स ऑफ एन फ्री फ्रॉम एक्स डी वाई, टर्म्स ऑफ एन फ्री फ्रॉम एक्स डी वाई, राइट, इक्वल्स टू सी, इक्वल्स टू जीरो, ठीक। अभी आगे कैसे डील करेंगे इसको, हाउ विल यू डील, तो देखो इंटीग्रेशन एम, एम का वैल्यू क्या है 6x रेस्ट टू 5 वाई क्यूब प्लस 4x रेस्ट टू क्यूब वाई रेस्ट टू 5 डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 डॉट डी वाई इक्वल्स टू क्या आएगा 0। अभी मुझे एक चीज़ बताओ, एक चीज़ सब लोग बताओ, n यहाँ पे टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x, यहाँ पे y के साथ x अटैच है तो फ्री नहीं है, इस y के साथ भी x अटैच है तो फ्री नहीं है। तो इनको ये कहना है कि x वाले टर्म्स नहीं चाहिए, सिर्फ y वाले टर्म्स चाहिए, जो कि पॉसिबल है क्या, आप ऐसे लिख सकते हो क्या n में x हटाओ और सीधा y स्क्वायर लिखो, नहीं, दैट इज़ नॉट अ n टर्म, x हटाओ एंड y लिखो, नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए वो ऐसा कोई भी टर्म अवेलेबल नहीं होने के कारण हमने क्या लिख दिया 0 लिख दिया, ठीक। तो अभी इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें से 6y³ बाहर आएगा, x रेस टू 5 का इंटीग्रेशन होगा, यहाँ से 4y रेस टू 5 बाहर आएगा, x रेस टू 3 का इंटीग्रेशन होगा। तो क्या इंटीग्रेशन आएगा जरा बताओ, 6y³ बाहर आया एंड x रेस टू 5 का इंटीग्रेशन होगा, x रेस टू 6/6 प्लस x रेस टू 5 होगा, x रेस टू 5 + 1 अपॉन 5 + 1, 4y रेस टू 5 बाहर आएगा, x³ का इंटीग्रेशन होगा, 4y रेस टू 5 बाहर आएगा, x³ का होगा x रेस टू 4/4, एक ऐड कर देना है हमेशा, ठीक, विच इज इक्वल्स टू, अभी 0 था लेकिन यहाँ पे अभी हम कांस्टेंट टर्म लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे c, व्हाट यू विल राइट c, 0 तो हम लिख नहीं सकते हैं, वो तो फॉर्मूला था, लेकिन यहाँ पे आपको क्या लिखना है c, 6 1 जा 4 1 जा 4 1 जा, तो यू गेट x रेस टू 6 इंटू y³ प्लस x रेस टू 4 इंटू y रेस टू 5 इक्वल्स टू c, ठीक। यह आ गया आपका, it is a required general solution of given differential equation, खत्म, इतना ही स्टेप्स करना है, ज़्यादा स्टेप्स करना नहीं है हमें, समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। ठीक है, तो अभी इसमें और एक टाइप हम लेंगे जहाँ पे वी विल यूज़ ये जो टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x वाला है ना, ये वाला कंसेप्ट यूज़ होगा, ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं, बस वो एक एग्जांपल, दैट इज़ दी यू नो, बस इतना ही हमारे पास, इतना ही टाइप अवेलेबल है, ठीक। तो लेट मी चेक कि ऐसा कहीं पे अवेलेबल है क्या, है, एक क्वेश्चन है, ठीक है। चलो क्वेश्चन 2, बस इसमें दो टाइप सी है, एक विदाउट दैट टर्म, मतलब 0 डालना है यहाँ पे आपको, ठीक है, मतलब एक भी टर्म ऐसा नहीं है जो x से फ्री नहीं है, आपने देखा यहाँ पे। अभी हम वो क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे टर्म अवेलेबल होगा जो x से फ्री रहेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज, मैंने बोला ना धीरे धीरे टाइप्स कम होते जाएंगे, सॉल्व sin x इंटू कॉस वाई प्लस ई रेस टू 2x डॉट डी एक्स प्लस cos x इंटू साइन वाई प्लस tan y इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो tan y है ना, ये x से फ्री है, ये क्वेश्चन लेने का यूज़ ये, ठीक है। तो मेथड वही, वेरिएबल सेपरेबल पॉसिबल नहीं क्योंकि साइन एंगल्स के साथ है ये x एंड y, ठीक। दूसरा होमोजीनियस नॉट पॉसिबल, ठीक, होमोजीनियस क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये जो साइन कॉस के एंगल्स है, ठीक है, ये देखो x का पावर 1 y का 1, तो x का 1 y का 1 मतलब 2 हो गया, इधर e रेज़ टू 2x है, तो यहाँ पे x का 1 पावर है, राइट, यहाँ पे x का 1 y का 1 tan y का 1 है, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ, तो होमोजीनियस नहीं। नॉन होमोजीनियस क्वेश्चन का टाइप ही बैठ नहीं रहा, क्योंकि वो x एंड y में होता है, साइन कॉस में नॉन होमोजीनियस अवेलेबल नहीं है अपने पास, ठीक। तो अब ये कौन सा बचेगा, तो एम डी एक्स एंड डी वाई, तो ठीक, कंपेयरिंग इट विथ
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो मुझे m का वैल्यू क्या मिलेगा, ये फर्स्ट वाला साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस ई रेस टू टू एक्स। अभी इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल एम अपॉन डेल वाई से, क्योंकि x के साथ है ना m, तो y से करेंगे। साइन एक्स एज इट इज़ रहेगा, कॉस वाई का इंटीग्रेशन आएगा माइनस साइन वाई प्लस ई रेस टू टू एक्स। इसके पास कोई भी y नहीं होने के कारण क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, ज़ीरो। क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, ज़ीरो। तो आपका सिर्फ आएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, क्योंकि y होता तो डेरिवेटिव होता, y न होने करके ये हो गया कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव ज़ीरो। एंड n है आपका cos x इंटू साइन वाई प्लस tan y। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, तो साइन वाई एज इट इज़ रहेगा, cos x का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन x प्लस यहाँ पे x नहीं होने कारण tan y कांस्टेंट हुआ, उसका डेरिवेटिव ज़ीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता, तो ये आ गया आपका माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है। हाँ सर, अगर हमें पता कैसे चले एम डी एक्स एन डी वाई है, तो क्या करना, फर्स्ट टर्म को विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करके देखो, उसका जो आंसर आएगा, एंड सेकंड टर्म को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करके देखो, उसका आंसर आएगा। दोनों सेम होंगे तो समझ जाना वो अपना एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है, मतलब जो हम लिख रहे हैं वो आपको वर्चुअली दिमाग में सोच के करना है। ठीक है। तो यह इन दोनों से क्या पता चल रहा है, देयरफॉर डेल एम अपॉन डेल वाई इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। दोनों क्या है, इक्वल है, देयरफॉर इट इज़ एन एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल इक्वेशन। ठीक है, ये जो दिया हुआ है ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल इक्वेशन, देयरफॉर इट्स सॉल्यूशन इज, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो मैंने लिखा था इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन क्या लिखा था, टर्म्स फ्री फ्रॉम एक्स इन एन में सिर्फ डॉट डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। सो इंटीग्रेशन m का वैल्यू लिख दो, क्या है m साइन एक्स डॉट कॉस वाई प्लस ई रेस टू टू एक्स इंटू डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, अभी ज़ीरो नहीं लिख सकते, क्यों, तो n को ऑब्जर्व करो, ये जो साइन y है ये कॉस x के साथ है, तो इसको तो नहीं लिखेंगे, टर्म्स पूछा है ना, पूरा नहीं पूछा है, तो ये टर्म नहीं आएगा, लेकिन ये तो फ्री है ना x से, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ tan y डॉट डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो नहीं लिखना, क्या लिखना है यहाँ पे, मैंने बोला था c लिखना है, वो तो फॉर्मूला है, लेकिन आपको लिखना क्या है, c। सर अगर इधर c लिखेंगे तो चलेगा, नॉट एन इशू, यहाँ पे c लिख दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट आना चाहिए लेकिन। ठीक, तो अभी मुझे बताओ, cos y विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स इंटीग्रेट करना है, तो cos y तो कांस्टेंट हुआ, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस ई रेस टू टू एक्स का क्या आएगा, ई रेस टू टू एक्स ओनली, लेकिन एक्स का कोएफिशिएंट दो होने के कारण हमें इस पर डिवाइड करना पड़ेगा, दो डेरिवेटिव में हम मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, एंड tan y का आता है हमेशा log ऑफ sec y इक्वल्स टू c। खत्म, इतना ही आपका आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर। वेरी इजी मेथड, वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपको एग्जामिनर को आपको क्वेश्चन पूछना है तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि दो ही फॉर्मेट, दो ही टाइप है, एक इंटीग्रेशन की जगह पे ये टर्म्स की जगह पे जीरो डालो या फिर y वाला टर्म्स डालो, और यही कंफ्यूजिंग पार्ट है। बहुत बच्चे क्या देखते हैं, अरे cos x के साथ है, इसको नहीं देखते, सिर्फ ये टर्म को देखते। टर्म मतलब दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म तो x के साथ है, सेकंड तो नहीं ना, तो सेकंड को तो लिख सकते हो। यहाँ पे टर्म वर्ड यूज किया है, पूरा n लिखा है क्या, n फ्री फ्रॉम x, मतलब पूरा n फ्री फ्रॉम x होना चाहिए, नहीं, इसमें जो टर्म से ऐसा टर्म जो x से फ्री है, तो ये वाला तो फ्री नहीं, ये तो लिखना है ना। अगर दोनों भी फ्री नहीं है तो जीरो लिखना है, खत्म। इसके लिए बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक, सो ये आपका आ गया आंसर। नाउ यू विल गेट क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, तो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, सॉल्व, दो क्वेश्चन देता हूँ, सॉल्व 2x³ प्लस 3y डॉट डी एक्स प्लस 3x प्लस y माइनस 1 डॉट डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये n है, और n में ये जो पूरा टर्म है ना y माइनस 1, इसके पास x नहीं है, तो ये आपका सब्सटीट्यूट हो जाएगा इस इंटीग्रेशन y वाले टर्म्स के इधर, टर्म्स फ्री फ्रॉम x इन n, इसकी जगह पे क्या आएगा, इस क्वेश्चन में y माइनस 1 आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, बाकी मेथड इज गोइंग टू रिमेन सेम। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व cos y प्लस y cos x डॉट डी एक्स प्लस साइन x माइनस x साइन y डॉट डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो।
यहाँ पे देखो एक भी टर्म x से फ्री नहीं है n में, इसके पास साइन x है, इसके पास x है, तो ये उधर क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ दिस की जगह पे 0 एंड देन यू विल सॉल्व। इंटीग्रेशन ऑफ 0 कुछ नहीं होता है, 0 ही होता है। ठीक है, तो ये था आपका एग्जैक्ट मेथड वाले क्वेश्चंस, इसमें और टाइप्स नहीं है। ठीक, सो दोज अंडरस्टूड प्लीज स्टैंड यस, दोज स्टिल नॉट अंडरस्टूड स्टैंड नो। Okay, give me 2 minutes. I will have water and अभी इसके आगे जो हमें सॉल्व करना है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या सॉल्व करना है, क्योंकि ये भी अभी इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है। इसके आगे भी जो पढ़ना है वो भी इसी से रिलेटेड वाले पार्ट्स है। ठीक है, मतलब आगे अभी 1 2 एंड 3, ये 3 कंसेप्ट इसी से रिलेटेड है। फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज linear equations that is also related to this। तो आगे के 4 पार्ट्स, 4 concepts related to this होंगे। ठीक, तो मैं आपको एक क्वेश्चन ही देके जाता हूँ सो दैट आप लोगों का भी एक डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज़ अ गुड क्वालिटी क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सॉल्व 3xy² माइनस y³ डॉट डी एक्स प्लस xy² माइनस 2x² डॉट डी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। ओके, किसी को आंसर आया?